today, 2nd December, okay, every year. And today our expert is Mr. Jay Kumar Singh sir, okay, and he will explain about the industrial waste management for sustainable pollution control. And this expert talk is being organized under Institutions of Innovation Council, Ministry of Education Innovation Cell, ITS Engineering College, okay. And sir is having wide experience in the field of industrial waste management, and he is having wide experience in the field of different ONGC projects. Have you heard about ONGC? Yes. Sir is leading so many projects in ONGC related with pollution control. Okay? तो ONGC क्या काम करती है? Anyone can say? Natural gas oil को Extract करती है. Okay? It is the Navratna company of the India. Have you heard about Navratna company? Okay. So it is the Navratna company of India. Okay? So with this brief introduction, may I request Mr. Jay Kumar Singh sir to kindly conduct the session and kindly welcome him with a big round of applause. And from ITS Engineering College, there is a token of gratitude. मैम तो ऐसे स्टील फोटोग्राफ. ओके सर. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, good afternoon everyone, and thank you Rajiv sir for giving me opportunity on a special day. Thank you, sir. As Rajiv sir already told, why today is pollution control day. Sir, today is a very sad day of our Indian history, we can say. On the night of 2nd December and 3rd December night, what happened? Bhopal gas tragedy. What is the reason? Okay, you have heard. Let me tell you, explain you what is actually going on. Before anything happens, it gives some alarms. Anything, either it is human being or something else. Heard. There are so many medical laws, but people ignore our alarms. Okay. So and regular maintenance is necessary for everything. Same thing happened at that plant. People are ignoring alarms. They are not visiting, doing their job. That it is going and ये तो चलता है. It will हो जाएगा. On the same day also, क्या हुआ? एक अलार्म आया. किसी ने उनको कहा कि जाके please go and visit that alarm. But in between they took some tea break. Okay. In between the tea break, what happened? There were 3 tanks. In tank there was methyl cyanide. Do you know what is methyl cyanide? Anybody have idea? It is very high, means concentrated. जिसको होता है ना ये पेस्टिसाइड. इवन इतना एक बोतल का हम उसको डाल देंगे, वो हमारे पूरे 2-3 बीघा के लिए कीटनाशक का काम करेगा. It will act like. So then now you can imagine how dangerous it was. Okay. तो माई थॉट आपको बताने का तरीका ये है कि प्लीज किसी भी चीज को इग्नोर ना करें. एनीथिंग, कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी है तो इस तरह से हुआ. ठीक है. आप अपना कंप्यूटर टॉपिक. तो एक पाइप था, पाइप से हमारे 3 टैंक कनेक्ट थे. एक पाइप में लीक हुआ. देयर वाज अ लीक फ्रॉम वन पाइप एंड देन वाटर एंटर वन टैंक. सो वाटर एंड methyl cyanide. What will happen? Anybody make a chemical? फिजिक्स हो, केमिस्ट्री तो पढ़ा होगा ना सभी ने. एक्चुअल केमिकल रिएक्शन होगा. उसमें जैसे वाटर आया, उससे पेस्टिसाइड से लिंक किया और उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ. धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वो एक्सपेंड हुआ, हीट जनरेट हुआ
तो हमारा जो टैंक का कैपेसिटी उतना नहीं था कि वो उसको सस्टेन कर पाए और ब्लास्ट कर गया। और वो था रात के 11 बजे स्टार्ट हुआ, 11-12 पूरा होते होते पूरी जगह फैल गया। और जहां जहां पे हमारा एयर का बहाव गया पूरा का एरिया उसने उड़ा दिया। मतलब जब इतना हाई मतलब हाईली टॉक्सिक है, जिसने जैसे इनहेल किया उसमें उसकी ये कैपेसिटी वो है कि गले में जाके वो जकड़ लेगा, पूरा आदमी सांस ही नहीं ले पाएगा। तो इसलिए काफी लोग मरने वाले। Now come to the topic. So I have told that today is Pollution Control Day. We commemorate the victims, and this is a type of means awareness for you people. You are young people. You have future. Okay. So please be sincere. I सब फर्स्ट ईयर वाले हैं कि सेकंड ईयर है? फर्स्ट ईयर है। ओके। Feel free to ask any questions regarding your future or anything, not only limited to this area. So I am also mechanical engineer at Saraj. Okay. So इस साल भी हम पोल्यूशन डे मना रहे हैं। इस साल का जो थीम है क्लीन एयर ग्रीन अर्थ। क्लीन एयर ग्रीन अर्थ, ए स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल लिविंग। तो सस्टेनेबल क्या होता है? Anybody have sustainable? It's a simple word you have heard so much time. Sustainable means हाँ ठीक है, टिकाऊ। सपोज हम कुछ कर रहे हैं, हमने जैसे एनवायरनमेंट से हमने कुछ लिया, ठीक है, हमने कुछ डिग किया यहाँ पे, तो हमने डिग करने के बाद हम कुछ रिसोर्स का ले रहे हैं। वी आर टेकिंग रिसोर्स। तो रिसोर्स जब ले रहे हैं तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, तो हमें किसी न किसी वे में वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो वैक्यूम इन केस हमने उससे फायदा तो ले लिया, वी एक्सट्रैक्ट गेन फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर फील्ड, बट वी आर नॉट रिप्लेसिंग इट, देन व्हाट विल हैपन? कुछ टाइम के बाद में वो कोलैप्स कर जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए उसे कहते हैं सस्टेनेबल, कि हमें सस्टेनेबल रखना है, कि हमें आगे ग्रो भी करना है, साथ में हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी हमें बचाना है। तो उसको बचाने के जो तरीके हैं वो हम आज यहाँ पे कुछ आई विल कवर टुडे इन टुडे। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे कंट्रोल जो हम कर रहे हैं क्या है? सबसे पहले तो हमें जो विक्टिम्स हैं उनको रिमेम्बर करना कि करीब 5 लाख तो रिपोर्ट है, मतलब 5000 तो रिपोर्ट जो है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जितने रिपोर्ट हो रहे हैं उससे कहीं कोना मैनीफोल्ड डेथ हुई होंगी उससे। दूसरा 5 लाख पीपल का लाइफ डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ उससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका कॉमन सेंस और बहुत जान बताएं। कैन आई टेल सर, गिव सम हिंट? There was a station master, railway station master. Okay, what happened? That plant was near to our railway station, and you know station. So Bhopal is a main city, so many trains come and go. So in that period, उस स्टेशन मास्टर इंस्टिंक्ट हुआ कि यार कुछ हो रहा है, पता किसको नहीं चला। उसको लगा कि समथिंग इज हैपनिंग हो रहा है, तो उसने क्या किया? इमीडिएटली अपना इमरजेंसी अलार्म किया। जितने भी वहाँ पे आने जाने वाली जो ट्रेन होती थी उसको उसने सबको अलार्म कर दिया कि यहाँ पे कोई भी ट्रेन ना आए। तो ये बिग डिसीजन होता है। कोई कभी क्या कहते हैं कि सपोज कि हम क्यों करें भाई, हमसे तो किसी ने कहा नहीं, होता है ना कि आप क्लास में भी सर ने कुछ चीजें हमें खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो उस एक क्या कहें पर्सन ने काफी लोग, 1000 लोग की जान बचाई। तो ये उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो आप लोगों की प्रेजेंस को अपने माइंड को हमेशा ओपन करके रखें, कि कहीं ना कहीं सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आजकल जो आ रही हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है, एनवायरनमेंट है, ये है। तो नॉट ओनली दिस, आपको किसी फील्ड में आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा हूँ, आप उसमें करिए, लेकिन अपने दिमाग को ओपन रखिए, ठीक है।
इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इसको विक्टिम को रिमेम्बर करना। दूसरा हमारा क्या है कि प्रमोट अवेयरनेस की अवेयरनेस, एनकरेजिंग सस्टेनेबल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। नाउ कम टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। बाकी वेस्ट दैट इज अनवांटेड मटेरियल दैट इज कॉल्ड वेस्ट। वेस्ट क्या है? जो हम प्रोसेस करते हैं उसी का एक बाई प्रोडक्ट है। हमें जरूरत, हम नहीं चाहते कि बने, तो हो जाता है, कुछ भी हो। इवन हम घर में सब्जी मतलब काटते हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो हम चाहते नहीं, लेकिन हो जाता है, वेस्ट है, तो उसे हम कहते हैं वेस्ट। तो वेस्ट भी कई तरह के होते हैं। मेटलर्जिकल वेस्ट, नॉन मेटलर्जिकल, फूड प्रोसेसिंग। मेटलर्जी जो लिंक मेटल से लिंक है वो मेटलर्जी। जो नॉन मेटलर्जी लाइक प्लास्टिक, ग्लास, ये हमारा ग्लास। फूड इंडस्ट्री का आप जानते हैं। वेस्ट कितने तरह के होते हैं? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो रिसाइकल हो जाए। रिसाइकल नहीं, जो डिकम्पोज हो जाए, डिकम्पोज हो जाए और नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक ना, तो उसे कहते हैं डिग्रेड। उसमें हमारे आते हैं जैसे काउडन है, पेपर है, इस तरह के फूड इंडस्ट्री जो हमारे किचन है, ये सब हमारे अपने आप ही हो जाता है। हम आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्री। वो क्या होते हैं कि हमारे टाइम के साथ में वो डिग्रेड नहीं होते। उसके लिए फिर हमें अलग से प्रोसेस होती है कि उसको कैसे उसको डिस्पोज करना। इन बिटवीन किसी के दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, यू कैन आस्क। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट क्या होता है? हमारी जो गाड़ी स्क्रैप हो गई, मेडिकल इक्विपमेंट जो पुराने हो गए, वो हमारे सॉलिड वेस्ट में आ जाते हैं। तो उनको स्क्रैप करने का तरीका क्या है? या तो हम उसको रीयूज कर लें या उनको बरी कर दें ग्राउंड में कहीं पे। ये हमारा इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है। अब इसमें भी दो तरह के वेस्ट होते हैं, हजार्डस वेस्ट एंड नॉन हजार्डस। हजार्डस क्या होता है? कोई एक पर्सन स्पेसिफिक बता सकता है? कोई भी हजार्डस का मतलब क्या होता है? आप जानलेवा। ओके, एनीबॉडी एल्स? जानलेवा। हाँ, जानलेवा हो सकता है। वो सेम आप उन्होंने इंग्लिश में कहा, आपने हिंदी में कहा, ठीक है। हम पहले करते टॉक्सिक है। तो हजार्डस वेस्ट आजकल जो हमारा जो एयर है ना, ये भी हजार्डस कैटेगरी में है। ये भी हजार्डस है। एनसीआर में जो चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, में काफी ग्रेड लगा हुआ है, ये भी हजार्डस है। तो इन सब ये हजार्डस वेस्ट होता है, नॉन हजार्डस होता है। नॉन हजार्डस क्या है कि वी कैन टॉलरेट, हजार्डस को वी कैन टॉलरेट, एनीहाउ वी हैव टू डिस्पोज इट, वी हैव टू एलिमिनेट इट एनीहाउ, कुछ भी करके उसको मिनिमाइज करना है। उसमें क्या आते हैं? केमिकल, जैसे हमने कहा, जैसे गैस है, केमिकल, रेडियोएक्टिव, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, ये हमारे हजार्डस में आते हैं। नॉन हजार्डस में क्या आते हैं हमारे? जैसे पेपर इंडस्ट्री के वेस्ट हैं, अपने फूड प्रोसेस के वेस्ट हैं, ये हमारा आज भी नॉन हजार्डस। ठीक है, आई होप ये तो सिंपल है, आपके समझ में सवाल है। और जो क्लासिफिकेशन है कैसे होता है, जैसे देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, माइनिंग, agriculture, industry, construction, and so many industries. Oil and gas also in the same category. अब हम इनको डिस्पोज कैसे करेंगे? सबका एक अलग अलग तरीका है डिस्पोज करने के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं, हम जैसे कि मैं ऑयल फील्ड से हूँ, तो मैं थोड़ा ऑयल फील्ड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ओएनजीसी के बारे में कोई बता रहा था कि क्या है, किसी ने बताया था कि क्या होता है? ऑयल नेचुरल गैस क्या करती है? एक्सट्रैक्ट करती है। एक्चुअली ऑयल ये है E&P बिजनेस। ई मतलब एक्सप्लोर एंड प्रोडक्शन। थोड़ा मैं ओएनजीसी के बारे में बताऊंगा, ओएनजीसी से हूँ तो आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। तो बोर्ड नहीं, ये मत कहना है कि थोड़ा मैं करें, मैं थोड़ा मतलब आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा मैं ओएनजीसी के बारे में बताऊँ। ठीक है, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर मतलब क्या होता है? किसी चीज में खोज। अब तो ओएनजीसी क्या करती है? एक्सप्लोर करती है कि हमारे कहाँ पे हमारे पोटेंशियल हो।
इंडिया में कहीं करेंगे। उसके 100 महीने तरीके हैं, जीएम सर्वे है, काफी सारे तरीके हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। जहाँ पे हमें मिला फिर उसके एक्सप्लोरेशन, उसके बाद दूसरा प्रोडक्शन। पहले हमने एक्सप्लोर किया, फिर ड्रिल करके हमने उसको जब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा इतना प्रोडक्शन है, फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो बाद में आता है, आपने कहा ना एक्सट्रैक्ट, वो हमारे बाद में आता है। पहले हमने उसको एक्सप्लोर किया, बाद में फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया। तो एक्सट्रैक्ट करने के बहुत तरीके हैं। ड्रिलिंग किया हमने, तो ड्रिलिंग करने के बाद में गैस भी आता है, साथ में ऑयल भी आता है। तो अब ये देखें कि जहाँ हम ऑयल और गैस एक तरह से बारूद है, अगर हमने उसको ऐसे कैजुअली ले लिया तो इट में ब्लास्ट तो होगा, साथ में नुकसान तो होगा। हमारा जो रिसोर्सेज हैं, जो यूजफुल रिसोर्सेज हैं, वो हमारे बेस्ट यूज है। तो उसको हम बहुत साइंटिफिक वे से हम उसको क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। यो क्या हमारा एक्सट्रैक्ट किया और उसको प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन कैसे हुआ कि वो रफ फॉर्म में रहता है, क्रूड फॉर्म में रहता है। वी टेक इट टू द सरफेस, प्रोसेस इट, बिकॉज डायरेक्टली वी कैन नॉट एक्सपोज इट टू द एटमॉस्फेयर। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसको सर्टेन वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। उसमें इम्प्योरिटीज रहेंगी, H2S और गैस मिक्स से रहेगा, तो हम उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये मतलब के ओनली नट्स है, मैंने बताया कि क्या हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इंडिया का लीडिंग मतलब E&P है अपना, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है 80% लगभग ONGC करता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से? क्वेश्चन पूछते रहिए, तो मेरे लिए बता रही कि आप लोग वर्ड नहीं हो रहे। भाई दीपू अरे बाप रे, आप कुछ आप लोग जब एक्सप्लोर करते हो जिस किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके उसको एक्सट्रैक्ट करती हो, फिर जो वेस्ट और जहाँ से केमिकल रिलीज होती है उसको आप लोग कैसे डील करते हैं? अच्छा ठीक है, उसके लिए भी आएंगे। गुड क्वेश्चन, उसके लिए आएंगे, वो अलग है। तो वेस्ट मैनेजमेंट को हम कैसे मैनेज करते हैं? तो जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो उसको अवॉइड ही करते हैं कि ना हो। ठीक है, अगर अवॉइड भी नहीं हो रहे, फिर उनसे क्या करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। भाई जितना, चलो ठीक है, वी कांट अवॉइड इट, मिनिमाइज करने कम से कम में। मिनिमाइज भी नहीं हो रहा है, उसको रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल एंड रीयूज। रिसाइकिल तो आप लोग जानते होंगे, किसी भी चीज को फिर से यूज करना। जैसे देखा ना गन्ने वाला वो करता रहता है, वो होगा रिसाइकिल। तो उसके बाद में जो उसको कुछ नहीं होगा तो उसको बरी कर देंगे, ग्राउंड में ट्रीट करके उसको कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं सीधा मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन इंडिया। सबसे पहले नंबर पर भोपाल गैस ट्रेजेडी है। भोपाल गैस ट्रेजेडी सर हैव टोल्ड एंड डिस्कस्ड the second Baija gas leak incident. थोड़ा उधर ही डिस्प्ले कर लो, आगे आगे एक्चुअली जो काम है तो मैंने स्किप कर दिया कि जब थोड़ा डिटेल में। बहुत अच्छा काम किया सर। राजीव सर टाइम कितना है मेरे लिए? टाइम है कि बच्चे बोर ना हो, नहीं सोच रहे कि बोर ना हो, तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। ऐसे पीछे बैक स्लाइड नंबर 13।
जो हमारी मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन इंडिया जो है उन सबके ब्रीफ में एक लिस्ट है यहाँ पे। सबसे नंबर 1 अभी तक जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी, सेकेंड वाइजाग गैस लीक इंसिडेंट, थर्ड में चासलाना माइनिंग डिजास्टर, जयपुर ऑयल रिपोर्ट फायर, कोरवा चिमनी कोलैप्स, मायापुरी रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट, बॉम्बे डोप एक्सप्लोजन। तो यू प्लीज गो थ्रू इट। कभी आपको कहीं कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला तो आप यू कैन रिलेट इट। नहीं तो बंद है। आगे ठीक है, अब आते हैं इसमें डिटेल में किसी को जानना है या फिर इसको स्किप कर दें? ओके, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में थोड़ा बताना जरूरी है क्योंकि आज पोल्यूशन डे है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं। जो 2003 मतलब सेकेंड के नाइट एंड थर्ड के स्टार्टिंग में हमारा इंसिडेंट हुआ था, मैं बता चुका आपको। तो ये हमारा क्या होता 40 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था। तो एज यू नो नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है, हम उसको तो सबको पता है, लेकिन भोपाल गैस के बारे में उतना नहीं पता। लेकिन ये मिनी हम कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ मिनी एटम बम कह सकते हैं, because after that incident the life of people also get affected, because कोई अंधा हो रहा है, किसी का कोई पैर हो रहा है, लंग्स खराब है, पर इतना ह्यूजली इम्पैक्ट किया लोगों की लाइफ पे कि अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं, इतना बड़ा हुआ है। और ये कॉज ऑफ पर्सन किस लिए हमारा के लिए कि आगे वाले टाइम में जो हमारे टेंशन क्रिएट होती है आपस में, टेंशन इन द सेंस मध्य पाकिस्तान तो हुआ, ये अभी हमारा जो चल रहा है पैलेस्टाइन, ये जो गाजा ये सब चल रहा है। अगर किसी ने बाई चांस न्यूक्लियर बम कर दिया, न्यूक्लियर ये मतलब हमारा जो होता है केमिकल बम, ये तो साइलेंटली सब बहुत मारेगा, मतलब कि नॉट ओनली पर्टिकुलर पर्सन, वो सबको मार, मतलब कि लॉन्ग टाइम में वो हिट करेगा। तो उसके लिए सबको अवेयर रहना चाहिए कि हम उससे कैसे, मतलब कि अगर कुछ हो जाए तो हम कैसे बच सकें। खैर ऐसे खैर बचना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर एटलीस्ट अगर तो मतलब ऐसे कुछ रीजन तो मैंने बता ही दिया था कि गैस लीक रीजन कैसे हुआ था, उसके आफ्टर इफेक्ट भी बताए गए। अब आते हैं हम ओएनजीसी क्या कर रही है। ओएनजीसी इनका रीजन एक ही क्लाइंट में सभी का पता होना चाहिए कि हो गया। हाँ भाई, आप लोग इंटरेस्टेड हो? बता दीजिए। भोपाल गैस का तो बताया था, सब तो मना ही कर। वाइजैक में क्या हुआ था, वाइजैक में जैसे हमारे पॉलीमर है ना, जैसे वहां पर हमारी गैस थी, वाइजैक में पॉलीमर जानते हो क्या होता है? पॉलीमर एक हर चीज ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पॉलीमर हमने सुनने में बहुत लगेगा, लेकिन उसके ऊपर सब लोग वेरी वेल पीएचडी हो जाएगी उसको, कितने पॉलीमर है, सब कुछ है। फिर उसमें क्या हुआ था, was an industrial accident that occurred at the LG Polymers, किसका नहीं LG होता है लाइट गैस, chemical plant during the early work। जो भी कुछ होता है, एक चीज बता रहा हूँ, अर्ली वर्ष में होते हैं वो। अर्ली वर्ष मतलब क्या होता है, चाहे नाइट को होंगे या फिर सुबह से को होंगे। हाँ, ऐसा क्यों बताओ, कॉमन सेंस। हाँ, सो रहे होंगे क्योंकि हमारा ना एक वो आता है कि जैसे आदमी, इसलिए हम क्या कहते हैं कि कंटिन्यूस शिफ्ट चेंज होता रहना चाहिए। भाई जाओ, जैसे मैंने नाइट शिफ्ट किया है
मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया। मैं सबसे पहले मैं ज्वाइन किया मुंबई में, वहाँ पे मैं कंट्रोल रूम में पोस्टेड था। तो राउंड द क्लॉक ड्यूटी होती थी वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता था कि सपोज नाइट ड्यूटी चल रही है हमारी, तो कभी कभी 10-11 बजे तक तो हमारा आराम से कट जाता था। 12 बजे के बाद में, 1 बजे के बाद में एक हैंगओवर, मतलब कोई भी एक नॉर्मल टेंडेंसी है, एक को आता है उसका, और वो चीज़ों को नेगलेक्ट करता है। नेगलेक्ट का कोशिश करता है कि जैसे भी करके 3-4 घंटे निकल जाए। ये नॉर्मल टेंडेंसी है। बस इसी को आप लोगों को भी थोड़ा सा मैनेज करना है कि कैसे भाई दिन में सो लो। एक इंसिडेंट में बताना चाहूंगा कि अपना पर्सनल क्या हुआ था। तो सेम ऐसे जैसे भोपाल में हुआ ऐसा हो सकता था। क्या हुआ कि एक नाइट शिफ्ट चल रही थी हमारी, ठीक है। तो सडनली एक अलार्म आया। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, वो हमें सिग्नल देते हैं कंट्रोल रूम में, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं कोई, तो खराब तो आपका शेयर तो नहीं पता। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि हमारा जो भी हमारे फील्ड में सारे वेसल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन कंट्रोल रूम होता है, ओके। तो कभी कभी क्या होता है, अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो जाए आप क्या करोगे? उस केस में क्या होगा, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सपोज हमारा काम ही करना बंद कर दिया, हमें रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। हमने कभी कभी घर पे भी देखा होगा, जैसे कहीं गाड़ी में जा रहे हैं कि भाई ये लेवल तो इतना बता रहा है, तो लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट वो हो गया। तो उस केस में क्या करना चाहिए किसी को? भाई तुम यंग लोग हो, यू कैन गिव सम आइडिया, ताकि मैं भी कुछ आप लोगों से सीखूं क्या कर सकते हैं। हाँ करेक्ट। लेकिन मैनुअली में कब हमें डिसीजन लेना है? ज्यादा क्रिटिकल है तो डिसीजन लेना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि उसको कितनी क्रिटिकल है। सपोज हमें अलार्म आ रहा है, सब हमारे के पानी है, भाई पानी कोई क्रिटिकल नहीं, ज्यादा जगह बह जाएगा, ठीक है, छोड़ दिया हमने। अगर हमें देखना है कि गैस है, भाई इसको हम वी कांट टेक रिस्क, क्या नींद आ रही है, कुछ भी है, हमें जाके बचाना है, ठीक है। तो हमें ना एक प्रायोरिटी भी अपने दिमाग सेट करनी है अपने उसमें कि हमारी किसकी क्या प्रायोरिटी है, तो किसको हमें क्या करना है, ठीक है। तो उस दिन ऐसे ही कुछ हुआ, नाइट शिफ्ट थी, इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या एक स्नैप हुआ, निकला, उससे रॉन्ग सिग्नल आने लगे। तो मेरे को लगा उससे कुछ मेजर इफेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऐसे सिग्नल आया हम क्या कमांड देते हैं, हमको अपने रेक्टिफाई होना चाहिए। लेकिन इधर से मैं कमांड कुछ दे रहा हूँ, वो वही का भी मेंटेन है। तो अब रात में दिमाग काम करना थोड़ा सा कम कर देता है। फिर भी क्या हुआ कि सिंसियरिटी थोड़ी ज्यादा थी, मतलब होती है ना लोगों के अंदर, नए नए ज्वाइन किए थे कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो पैनल होता है कहीं पे, तो मैंने किसी दूसरे को कहा पैनल एक बार बैठा यहाँ पे, मैं खुद जाके देख के आता हूँ। तो एक टेंडेंसी क्या होती है, जैसे आप लोगों को क्या लेजीनेस नहीं होता, मेरा क्या होता है कि मैं जाऊंगा तो मेरी कैलोरी बर्न होगी, कि मैं फिट के रहूंगा। मैं एक मेरा ये भी था, तो जाके वहां पे गया, जाके देखा तो इंस्ट्रूमेंट स्नैप हुआ, मतलब बाहर निकला होगा वो। तब इमीडिएट उसको हमने पूरा हल्ला मच गया, भाई ऐसे ऐसे हुआ रात में। फिर जब कुछ हो जाता है, जो नींद सब अलग हो जाते हैं, नींद सब गायब हो जाती है, भाई पता नहीं क्या हो जाता है। तो ठीक किया, उसके लिए फिर मैं बाद में अवार्ड भी दिया, उन्होंने बोला कि भाई अच्छा काम किया, ये किया। तो ये है कि हमें अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी है सबको, आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, कि हमें क्या बनना है, ठीक है। और अभी से सिंसियर हो जाओ सभी लोग, क्योंकि सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर ऐसे ही है, ये हमारा बेस फर्स्ट ईयर से बन रहा है। आप ये नहीं कि मैं लेक्चर देना शुरू हो गया, जो रियल है आप लोगों के लिए मैं थोड़ा ये बता रहा हूँ कि इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। आपको दिल्ली के पास में रह रहे हो, अच्छे वो है, नोएडा भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो आप पे अच्छे मतलब आपको एक्सपोजर अच्छे मिलने के चांस है। तो जो भी अच्छे से करेगा उसको ही विल गेट रिवॉर्ड। तो अभी से आप लोग सब सिंसियर हो जाइए, हर चीज को सिंसियर देखिए, अपनी प्रायोरिटी सेट करिए कि लाइफ में जाके क्या करना है। यूपीएससी में जाना है, कुछ लोग की टेंडेंसी यूपीएससी जाना, इंजीनियरिंग में जाना, देयर आर सो मेनी फील्ड्स, म्यूजिक, इवन आजकल तो इंजीनियर हर जगह है, कहाँ नहीं पता ही होगा आप लोगों को। तो बीच बीच में थोड़ा मैं लेक्चर देता रहूंगा, तो प्लीज बियर विद मी। एक इसके बाद हमारा चातराना माइनिंग डिसास्टर। चातराना में क्या हुआ था, ये माइनिंग जानते हैं आप लोग, माइनिंग क्या होता है? हाँ, वो तो सबको पता ही होगा माइनिंग क्या है। तो ये सेम हमारे नीचे लोग थे वहाँ पे,
वहाँ पे भी सेम, क्योंकि जब भी हम लोग अलार्म सब कुछ देता है, हर सब सिस्टम फेल होने से पहले एक अलार्म देता है, लेकिन हमें उस अलार्म को बस मतलब उसको अटेंड करना है। तो सोल्यूशन हर चीज का है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हम बचे जा सकते हैं कि हम टाइम पर उसको साफ लाने में ऐसे होता है कि हमारे 2 फील्ड थे, तो एक हमारे कोलैप्स कर गई, कोलैप्स करने के बाद दूसरे को बचाने गए तो वो भी कोलैप्स कर गई, तो अंदर ही काफी लोग हो गए। तो इस तरह के ये हैं छोटी छोटी चीजें, छोटा नहीं कहीं का। इसके बाद एक जयपुर ऑरेंज रिपोर्ट में हुआ था, वहां पे क्या हुआ था कि हमारे फायर टैंक होते हैं बड़े बड़े, आप लोगों ने देखे होंगे। तो फायर टैंक में क्या हुआ था कि हमने जैसे हम परमिट देते हैं किसी को काम करने के लिए, तो पहले उस एरिया को पूरा सील कर देते हैं। सील इन द सेंस पूरा हाइड्रोकार्बन वहां से निकाल देते हैं, ऑपरेशन पूरा वहां पे बंद कर देते हैं, और फायर के जो हमारे फायर टेंडर होते हैं वहां भेज देते हैं, तब हम उसको आगे करते हैं। लेकिन उस केस में क्या किया, लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, रनिंग प्लान में उन्होंने बैटिंग शुरू कर दिया, तो आग पकड़ लिया। और हमारा इंडस्ट्री ऐसा है, अगर एक बार आग पकड़ लिया तो ढेमला पूरा के बालू रहे थे, एक ने पकड़ा, धीरे धीरे उसको बुझाने चक्कर में ब्लास्ट होता है, बिल्कुल आगे ने पकड़ा। तो ये अभी तक का काफी मेजर डिजास्टर जयपुर में हुआ था। तो उसके बाद में फिर लेकिन इंडिया में एक बात है, पहले कोई ध्यान नहीं देता, बाद में उसका आज तक आफ्टर इफेक्ट आ रहा है। ये हमारा हुआ था 2009 में। उसके बाद में क्या किया कि सब जगह सेफ्टी मेजर लेने लगे। भाई जहाँ टैंक है, वाल्व हमारे ऐसे होने चाहिए, वाल्व हमारे बाहर, वाल्व जानते हो आप लोग, वाल्व बी वाल्व बंद रखते हैं, ये छोटे भी होते हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप 2-3 लोग मिलकर भी खोल नहीं खोल पाओगे, इतने काफी वो होते हैं वो। तो उससे क्या होता है, वो मोटर लगी होती है साथ में, तो वो सब चीज। अब आते हैं ओएनजीसी क्या कर रही है। अच्छा, मेजर स्लाइड 16 का और आ गया। अच्छा, पॉल्यूशन चल रहा है, पॉल्यूशन के लिए कोई बात नहीं है। पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कोई बता सकता है? व्हीकल, और स्मोकिंग, क्या स्मोकर वो अलग चीज है। सबसे बड़ा जो एक होता है फोसाइल फॉल, एक होता है नॉन फोसाइल फॉल। फोसाइल फॉल जानते हैं आप लोग क्या होता है? फोसिल फॉसिल एंड नॉन फॉसिल, फॉसिल फ्यूल्स। फोसाइल फॉल वो होता है कि जो हमारा मतलब के जल जाए मतलब डिके हो जाए, डिके किसी ने कहा कि डिके हो जाए। उसमें कोल आता है हमारा, ऑयल है, गैस है, ये सब हमारे डिके है, ये घर में यूज करते हैं। और नॉन फोसाइल में क्या आता है हमारा? नॉन फोसाइल अभी तो बताया कि फोसाइल में सर पेट्रोल डीजल में जो भी चीज हमारे नष्ट हो जाए, बर्न हो जाए, वो हमारा फोसाइल। रिन्यूएबल जितने भी हमारे सब नॉन फोसाइल है, जैसे सोलर है, विंड है, बायो है, क्योंकि हमारे कभी हमारे पास मतलब खत्म नहीं होते। भाई सन है, आज है, कल फिर आएगा, इस तरह से सोलर एनर्जी। तो फोसाइल नॉन फोसाइल। और सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन जो हमारा होता है वो होता है फोसाइल फ्यूल से। तो फोसाइल में भी कौन सा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर? कोल सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारी जो पावर जनरेशन है 65% कोल पे बेस है, 20% हाइड्रो, 3% न्यूक्लियर एंड 10% रो न्यू मतलब जो न्यू क्या बोलते हैं इसको, रिन्यूएबल। ठीक है, वो काफी 10 है, मतलब 10 है, अभी उसको हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अब हमें हिट कहाँ करना है? अगर हमें पॉल्यूशन को कम करना है तो हमें हिट कहाँ करना चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, हम एक ग्रोइंग कंट्री है और हमें तो एनर्जी चाहिए। सोच के बताओ, कोई ऐसे यंग माइंड है कि हाँ कहाँ पे वेट करना चाहिए? क्वेश्चन ठीक बता दूं क्या क्वेश्चन है।
हमारा मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन है कोल इंडस्ट्री, ठीक है, जो पावर में जनरेट होती है, ठीक है। सिंपल लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना। तो अगर हमें पोल्यूशन को कम करना है, जैसे कि अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हमारे पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है, एनसीआर में हो रहा है, तो क्या किया गवर्नमेंट ने? ग्रेफ कोड लगा दिया भाई, ये व्हीकल नहीं चलेंगे जिनका BS6 है। अभी लेटेस्ट कौन सा BS चल रहा है, किसी को पता? BS6 चल रहा है। ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ? 2020 से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा SO2 का जो इमिशन है वो 10 ppm रहना चाहिए। इनिशियली 350 था, उसको कम करके 10 ppm कर दिया, ठीक है। एक तो हमने बताया था कि उसको हमारा इमिशन ये होना चाहिए कि हमने BS6 कर दिया उसको। तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? BS6 तो हमने कर दिया, तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे? भाई कोई भी चीज अगर नेगलेक्ट कर रहे हैं तो उसका हमें प्राइस देना पड़ेगा। प्राइस किस सेंस में दे रहे हैं हम? हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी है भाई, पुरानी गाड़ी निकल गई, नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, नया हमारा वो डीजल रिफाइनरी में हमें BS6 के लिए हमें फिर जो मतलब मॉडिफिकेशन हम इंजन में कर रहे हैं, हमें अपने पेट्रोल में भी करना है। पेट्रोल में करना है तो हमें क्या अपने रिफाइनरी में भी सेटिंग करनी है, उसको मॉडिफाई करना है, उसमें भी पैसा जाएगा। पैसा जाएगा मतलब पेट्रोल हाई होगा, ये सब हमारे पॉकेट से जाएगा। तो ये है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग इफेक्ट होते हैं। अगर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा तो हम लोग इफेक्ट होते हैं। ये तो एग्जांपल हो गया हम कैसे कंट्रोल करके हमने इसको इमिशन कम कर दिया BS6 बढ़ा के। ऐसे ही कोल में हम कैसे कर सकते हैं? मेन एरिया से दूर करते हैं, मेन एरिया से दूर कर देना, ये देगा वो है फिल्टर यूज कर सकते हैं। फिल्टर, वहां तक जा रहे हो। फिल्टर तो नहीं, फिल्टर से क्या होगा कि वो कैसे निकलेगा। हमें जो गैस है ना, मेजर सोर्स उसमें सल्फर डाइऑक्साइड आता है, तो हम क्या करते हैं, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन होता है। ये गवर्नमेंट ने हर बार बोलती भी है कि भाई अगर तुम बना रहे हो ठीक है, पर वो करो, फिर तुम जिस बुक में लगाते हो उसे बोलते हैं FGD, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन। तो अगर हम कल्प्रिट ही निकाल देंगे, कल्प्रिट इन सेंस भाई सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा आ रहा है, जैसे उन्होंने हमारे क्या किया कि भाई BS4 कर दिया। BS4 करने से क्या किया हमने, हमारे इंजन में मॉडिफाई कर दिया, पेट्रोल मॉडिफाई कर दिया, तो हमारा पर इमिशन कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे पॉलिसी कर सकते हैं, कौन पे नहीं कर सकते। कोई एनी गैस, ये डबल स्टैंडर्ड कह सकता हूँ गवर्नमेंट का। एक तरफ तो किसी के ट्रक पे बैन लगा दिया, भाई किसी ने 10 साल पुराना लिया उनको बैन कर दिया, उनकी रोजी रोटी चलेगी भाई, उन पर तो उन्होंने कंट्रोल कर दिया भाई, ठीक है तुम्हारा है, तुम्हारा BS4 नहीं है, तुम यहाँ नहीं आ सकते, BS6 नहीं यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। उन पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं कंट्रोल? यहाँ आती है वोट बैंक, किस सेंस में आती है कि हमें पब्लिक को वो करना है। हमें क्या है कि जैसे हमारे यहाँ है, हम उसे रेट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कोल प्लांट होता है, वहां से इमिशन हो गया, ठीक है, इमिशन हो रहा है, साथ में हमारा SO2 आ रहा है, तो हम उसको बाहर ना निकलने दें, ठीक है। SO2 को जो इमिट हो रहा है उसको हम बाहर ना निकलने दें, वहीं पे हम कुछ लगा दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो पॉल्यूशन आ रहा है उसको कम करना है, जैसे SO2 है उसे कम करना है। तो उसके लिए कि हमारे रेट्रोफिट करके हम इक्विपमेंट लगाते हैं बाद में, लेकिन वो कॉस्टली होता है। कॉस्टली होगा, कॉस्टली होने पे वो उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? रेट बढ़ेंगे हमारे, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ेंगे, गवर्नमेंट को बढ़ाते नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको छूट दे रखी है भाई। यहाँ तो अगर जो हम मतलब कि गलत मतलब कि हमारा BS4 नहीं है या PUC नहीं है तो हमें इतना चलाना है, उधर वो अपना भर गया करीब। अगर आपको सरप्राइज होगा, अगर आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा जो सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है वो कहाँ पे हो रहा है, गैस करेंगे कोई? इंडिया में हो रहा है। नहीं एज ए होल बता रहा हूँ मैं, वो इंडिया में हो रहा है, इंडिया नंबर 1 है। लेकिन हमें डेवलपिंग कंट्री है, हम उसको मना नहीं कर सकते भाई कि सब कुछ एनर्जी बेस्ड है, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं प्राइस देना पड़ेगा। तो ये मतलब दोबारा सरकार ने एक तरफ से वहाँ पे इनको पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कर रही है, दूसरे तरफ में छूट दे रखी है। अभी एक चीज और क्या है कि नए प्रोजेक्ट आने के लिए अप्रूवल दे दिया, जो कोल बेस्ड है 20% दे दिया, क्योंकि हमारी डिमांड बहुत है।
डिमांड नहीं है तो हम क्या प्रोड्यूस करके अपनी नेबर कंट्री को दे रहे हैं, बांग्लादेश को दे रहे हैं। तो अब जब वहाँ दे रहे हैं भाई, जब वहाँ पे प्रोड्यूस हमारे यहाँ पे हो रहा है तो पोल्यूशन भी तो यही होगा, है कि नहीं? जब पोल्यूशन यहाँ होगा तो लेकिन गवर्नमेंट को वहाँ पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि भाई ठीक है, यू कैन जनरेट पावर बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। यही होता है सस्टेनेबिलिटी। भाई एक तरफ तो आपने कह दिया कि तुम अपने वाले केस कम करो, अगर हमारा वही इमिशन बाहर आया तो उससे क्या इफेक्ट होंगे? SO2 अगर बाहर आएगा उससे क्या इफेक्ट होंगे? उसमें हेल्थ भी होगा, एनवायरमेंट भी होगा, हमारी फसल भी खराब होगी, ट्री भी खराब होंगे हमारे, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये डबल स्टैंडर्ड है थोड़ा वो था। और जो हमारा एक होता है ग्रीन हाउस गैसेस, सब लोग जानते हैं क्या होता है? क्या आप 3 लोग लेकर बाकी वर्ग को तैयार करें? किसी को खड़ा करके पूछूं? चलिए, अच्छा एक है COP, जानते हैं COP क्या होता है? COP 26, अभी रिसेंटली COP 29 हुआ है। एक क्या होता है, कंट्रीज हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो हर साल मिलती हैं और वो जो इस तरह की एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करने के लिए बनाई हुई एक COP है, ठीक है? तो COP 26 हुआ था, तो उसमें हमारे जो PM थे उन्होंने पंचामृत दिए, पंचामृत। तो आप जानते हैं वो क्या थे? हाँ वो अच्छा उतर आ ही रहा है वो। आप लोग ये थोड़ा आपका जनरल नॉलेज बड़े करते, पंचामृत क्या था, कब हुआ था, COP 26, ठीक है? तो इंडिया विल गेट इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। अभी कितना है? अभी लगभग एक कैपेसिटी है, जनरेशन। एक होता है कैपेसिटी, एक होता है जनरेशन। ये हमारे इतना है कि टारगेट है कि हमारा नॉन फॉसिल इन द सेंस कि जो कोल ना हो, नॉन कोल सोर्स है उसको हम बढ़ा दें। दूसरा, इंडिया में 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए विद रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्या होती है? सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया, और थर्मल नहीं है अभी तो पता है। थर्मल वो है तो बिगेस्ट सोर्स है। एक होता है हमारा जियोथर्मल, जियोथर्मल क्या होता है किसी को पता? उसमें क्या होता है कि हमारे जो उसमें हम हमारे जो जमीन है ना, अर्थ है, उसके नीचे हीट होती है। तो कहीं कहीं एरिया हम आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है, कुछ एरिया बहुत हीट है, तो हम उस हीट से पावर जनरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं जियोथर्मल। ठीक है, एक सेकंड है। इंडिया विल रिड्यूस इट्स प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन बाय 2030। ये बहुत एग्रेसिव टारगेट है, लेकिन जब तक हम टारगेट नहीं बनाएंगे उनको अचीव कैसे करेंगे? तो हम खैर हम बताएंगे इसके आगे हमारे क्या क्या पहुंचे हम लोग एज ए ओबीसी। इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030। और एक इंडिया विल अचीव नेट जीरो बाय 2070। अब इनमें से किसी के ऊपर कोई डाउट है किसी को? लंच के बाद सहते ना थोड़ा लोग बोर होगा, हम लोग एंजॉय करो ना, बता देना। नेट जीरो क्या होता है? नेट जीरो टेक्निकल गाए आप लोग। पूरा जीरो? नेट जीरो पूरा जीरो नहीं, नेट जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो तो होने का अल्टीमेटली। ठीक है, नेट जीरो क्या होता है? नहीं, अगर हम कहीं से पॉजिटिव हो रहा है तो उसको बैलेंस करना बस नेट जीरो। ये हमारा नेट जीरो है। तो नेट जीरो मतलब यहाँ पे नेट जीरो से मतलब क्या है कि हमारे जितनी भी पोल्यूशन है, कार्बन इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अगर हम यहाँ से इमिट हो रहा है तो कहीं हमें उसको बैलेंस करना है। ये हमारा हो गया नेट जीरो। ठीक है, सब बेसिक टर्म्स नहीं है, थोड़ा सा अपना आप लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे, देन यू विल डेफिनेटली।
अब आते हैं हमारा ओएनजीसी क्या कर रहा है। ओएनजीसी एक रेस्पॉन्सिबल अपने आप में वर्क कंपनी वो है, तो उसने इस नीड को ऑब्जर्व किया कि भाई सोशल पर बहुत हो रहा है, ये सब हो रहा है, इन जो पंचामृत है उनको बहुत सीरियस लिया। तो उसके लिए हमने अभी लास्ट ईयर उसका प्रोसेस चला। हमने इस साल एक अपनी होल्डली और ओएनजीसी ग्रीन ओजीएल बनाया, ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड, ये हमने कंपनी बनाई। वो सिर्फ पूरा अपना जितनी भी नॉन फॉसिल फ्यूल है उसी को लेके देखेगा। नॉन फॉसिल में क्या क्या है मैंने ही बताया था। मेरा जो उद्देश्य है कि आप लोग कुछ सीख के रहें इससे। तो नॉन फॉसिल में क्या क्या है? नॉन फॉसिल रिन्यूएबल हो गया, रिन्यूएबल में ही सोलर आ गया, सोलर, विंड, हाइब्रिड, टाइडल, जियोथर्मल, ये हमारा रिन्यूएबल हो गया। आजकल एक और है, आजकल अपने हमारे जो गडकरी साहब बहुत बोलते हैं हाइड्रोजन। एक है ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव, एक कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। ये एक नया टर्म है आप लोगों के लिए, शायद आपने नहीं सुना होगा, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। डिटेल में बताऊंगा इसके लिए। तो ओएनजीसी क्या कर रही है, हमने सबसे पहले एक कंपनी में ओजीएल करके कि वो सारे जितने भी हमारा बिजनेस है, हमारे ईएनटी के लिए तो अलग से हमारा ओएनजीसी है, एक अलग से बनाए भाई तुम सिर्फ ग्रीन एनर्जी देखोगे, उसमें क्या हमारा रिन्यूएबल आ गए, ये सब को सिर्फ ओजीएल देखेगा। ठीक है। सेकंड हमने क्या एक एनटीपीसी अब हमें ये करना है, टारगेट तो हमने बना लिए भाई, अचीव कैसे करेंगे उसको, हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है। सपोज हमें किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है तो दूसरे का एक्सपीरियंस लेना है, तो हम क्या करते हैं कि मेरे पास किसी चीज का एक्सपीरियंस है और दूसरे के पास मतलब मेरे पास मनी है, दूसरे का एक्सपीरियंस है, हम क्या जॉइंट वेंचर बना देते हैं। ये आजकल बहुत बड़ा कंसेप्ट है जॉइंट वेंचर। नाम सुना कि जॉइंट वेंचर क्या होता है? बहुत जॉइंट वेंचर होता है, जैसे दो पार्टनर मिले, भाई तू तेरा 30% है, मेरा 70%, ये कुछ भी है, तो हमारा जो भी होगा सब कुछ 30-70 में होगा। खर्चा 30-70, प्रॉफिट 30-70, अगर लॉस भी होता है वो भी 30-70। उसका फायदा क्या है? एक तो हमारा जो लॉस है अगर इनकेस होता है तो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, भाई एक आदमी इतना लॉस नहीं खा पाएगा तो चलो भी मिलकर खा लेंगे। दूसरा, किसी भी चीज में जैसे आप 3 लोग बैठो, ठीक है, आपको सपोज केमिस्ट्री पसंद है, आपको फिजिक्स पसंद है, आपको मैथ पसंद है, तो तीनों मिलके बैठोगे करोगे तो तीनों ही एक लेवल पर आ जाओगे। तो जॉइंट वेंचर का ये फायदा है भाई, जो जिसे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ वो मैं आपको दूंगा, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो वो आप मेरे को दोगे। तो ये हमारा जॉइंट वेंचर। तो आजकल जो नया तरीका है वो जॉइंट वेंचर के लिए। उसके बाद हमने एनटीपीसी के साथ में एमओयू लिया। एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एनटीपीसी के पास में इसका वो भी एक बड़ा महारत्न कंपनी है, ओएनजीसी में महारत्न है, वो सर ने सर नवरत्न बोला था, नवरत्न महारत्न और नवरत्न में अंतर है कि हमें प्रोजेक्ट हमें गवर्नमेंट से नहीं लेना पड़ता। जैसे अप्रूवल के लिए सपोज महारत्न और नवरत्न एक थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ। इसमें क्या होता है, एक हमारे पर्टिकुलर की लिमिट होती है कि हमारे 5,000 करोड़ तक हम खुद से ही, मतलब कुछ लिमिट है, ये आप गूगल करके चेक कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ ये जनरल टर्म है कि हमें गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। होता नहीं कि अप्रूवल लेंगे भाई तभी हम कुछ शुरू कर पाएंगे। अब जैसे हमें एनटीपीसी से जब जॉइंट वेंचर बनाना था, अगर हम नवरत्न या मिनी रत्न होते तो हमें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता। इस केस में हमने डायरेक्ट एक जॉइंट वेंचर बना लिया एनटीपीसी के साथ में, वह ठीक है, 50% आपका 50% हमारा, तो हमारे जितने भी आप इसमें हमारी हेल्प करिए। तो ये हमने जॉइंट वेंचर बनाया, ये हमारा खतरनाक है उसके लिए। थर्ड है कार्बन मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ग्रुप। तो उसी में अब तो सिलेक्ट चल रहा है, ठीक है। इसके बाद कार्बन कैप्चर है, FGRUT वाली, CBRU एंड ऑयल वाली। आपने क्वेश्चन पूछा था, क्या नाम है अपना? आपने स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन पूछा था कि जो गैस जनरेट होती है उसे कैसे वो करते हैं, वो अब आएगा। क्यों करते हैं
बेसिकली ये हमारा जो गैस इमिट हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, बाहर आना नहीं चाहिए, ठीक है, ये क्लोज लूप रहना चाहिए, लेकिन वो बाहर आ जाता है इनकेस, तो उसको हम कैसे मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि टेक्निकल फ्लेयरिंग उससे हम बोलते हैं टेक्निकल, वो कुछ चीजें हम अगर काम करेंगे तो हाथ गंदे भी होंगे, ऐसा है। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं तो बाहर तो कुछ निकलेगा, फ्लेयर होगा, तो वो है, उसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, उसके लिए हम अब आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। ये ओजीएल के बारे में तो आपको बता दें कि ओजीएल एक ऐसे वो है एंटी लड़े सर ओवर सर अब हो गया बस सोना है सर ओवर हो गया सर ऐसे बता देंगे कौन सर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे ओएनजीसी के बारे में, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्लाइड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर क्या करते हैं वहाँ, ओएनजीसी क्या करती है, वो आपके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके सर, ओके सर। और तो सबको दो। मैम सर का जोर है क्या लेके करके आते हैं। आवाज आ रही है, ऑडिबल? माइक बंद है लाइट की लाइट एंड यूटिलाइजेशन। ये कार्बन कैप्चर किसी ने एक टर्म सुना है? राजीव सर से पूछो ना। नहीं सुना, मेरे को लगता है ये हमारे 5 मिनट में जो हमने टारगेट रखे हैं वो कैसे अचीव होंगे, उसमें से एक हमारा ये कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज है, ठीक है। अब इसे हम कैसे करते हैं, कार्बन को ऐसा तो नहीं कि हमने पकड़ा बोलिए बंद कर रखे, ऐसे नहीं, ठीक है। उसके लिए साइंटिफिक वे हमारा तरीका वो है, उसे कैसे करते हैं। जैसे हमारा सपोज हमारा कोल प्लांट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाँ पे हमारा बहुत हमारा सोर्स है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, सब चीज़ का तरीका होता है, लेकिन बस क्या हमें उसको एक बिल पावर होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, डेफिनेटली वी कैन अचीव इट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री है, उससे इमिशन हुआ, वो हमारा हमने कम्बशन किया, कम्बशन के बाद में हमारा बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद में फिर क्या हुआ कि डायरेक्ट एनवायरमेंट में नहीं छोड़ सकते उसे, सीधा डायरेक्ट आके इम्पैक्ट करेगा उसको। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे रेट्रोफिटिंग कर देते हैं। रेट्रोफिटिंग समझते हो? रेट्रोफिटिंग उसमें जैसे आपने एक टर्म सुना होगा, जैसे हमारा पेट्रोल व्हीकल होता है, तो लोग कहते हैं कि बहुत माइलेज लेता है, चलो भाई तो हम सीएनजी किट लगा देते हैं। तो जब उसमें सीएनजी किट लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोफिटिंग। तो वो हमारा हम कभी